Hello everyone, welcome to a new video of Kaushik's Astrology. In today's video, we are going to discuss a very new and very important topic for all of us. We all, in various forms in life, encounter competition. We take tasks of various fields. Many a times, these tasks are like gaining X amount of wealth or reaching to Y amount of position. Reaching to the Y position. Somebody may be born in a middle class family, wishes to be an IAS officer. Somebody born in a rich family wishes to be a minister. Somebody born in a minister's house wishes to be a prime minister. So we all have tasks and competitions to deal with in daily life, no matter on what position we stand in life. So in this video, what I'm going to discuss with you is how to find how many failures or how many attempts you have to make before you make it to the goal that you set it for yourself. For example, there is a person came from a village and he is willing to get a government job. He's sitting in Delhi and 1 year has passed. He has given attempt, he has failed. Second attempt he has given, he has also failed. So now there is a lot of financial burden on his family back in the village, and there is also a huge amount of emotional and financial burden on himself as he is continuously failing and unable to crack this exam. But one thing that haunts him is that yesterday he got a call from the village that his mother showed his birth chart to some village astrologer back in 5 years ago, and he told that he is going to get a government job. Now that kid is crying that like, how come I was told 5 years back that I'm going to get a government job, but I'm not getting it? That astrologer must be stupid. But that is actually wrong. See, many astrologers are capable of telling you that whether you have the yoga to achieve the desired success you want to, but hardly there is any who is capable of telling you, or is willing to tell you, or is interested in telling you that how many attempts you will uh, have to do to succeed. In this video, I am going to share a beautiful technique which I have discovered myself, and as always, the only inspiration for me to discover new things is to have people to listen to them and people to share with. Earlier, I had friends like Satvik and all the other friends to share these techniques with. That was the initial interest and the initial reasoning for myself to just do some research. Now, as we have such a big family on our YouTube channel, so I also have another inspiration to do researches and share with you. So the credit for these researches are is given to all of you, because if there are no you, then how come there is going to be me? So my researches are just based on the people around me, to help them, to make them happy, and to give them something that they haven't seen. So thank you for these techniques rather than thanking me myself for these techniques. But before moving to this technique, I wanted to share an event that happened yesterday with me. What happened, I write quite often on the Quora. Quora is a platform where people ask questions and other who have the answers try to answer those questions. So yesterday I encountered a question. Somebody bluntly asked that tomorrow is UFC 262. UFC is a sporting company that conducts fight between martial artists and see who is the stronger. And based on that, they give belts to the particular winner and declare them the world champions. So some same kind of fight is going to happen today. Was going to happen today. So he asked the question that between these two fighters, who is going to win? So at that point of time, encountering that question was very enthusiastic for me, because I always like new things and new questions and new challenges. So that question brought a big challenge to me. So I tried to answer it, and you see, as I always say, if your basics are correct and God is with you, you always predict the right things. And yesterday I predicted that between these two fighters, one of the name was Charles Oliveira, and the other person name was, I think, Michael Chandler. So I said between these two, uh, Charles Oliveira will win. And by God's grace, today morning that fight and event happened, and Charles Oliveira win the world championship. And I think that's in something I always love about astrology, that how come you do things that makes you special.
and you are capable of doing things what people wish to they can do. Because for a bookie or somebody who is gambling into sports, it would have been a big win. But I don't promote gambling, but I just wanted to share this thing with you. You can see the screenshots I have shared with you. These are the answers. I have given the description. I have given the link of the answer in the description. You can go check it out. How I predicted the result of a big fight 10 hours in advance before it happened. So now coming back to the original content or the technique which we were going to discuss in today's video. And the technique was how to find the number of failures you have to face. So let's begin the video. The slide that you see in front of you says ट्रायल्स टू सक्सेस और सफलता की सीढ़ियाँ. इस वीडियो के अंदर हम इसी विषय के बारे में बहुत गहनता से और एक बहुत अच्छी टेक्निक के साथ डिस्कशन करेंगे. वी ऑल एनकाउंटर कॉम्पिटिशन इन लाइफ many a times just for fun, and many a times this competition is very crucial and life changing. देखिए, हम सभी जीवन में किसी न किसी मोड़ पे कंपटीशन को देखते हैं, झेलते हैं. कभी कभार वो कंपटीशन ऑफिस पॉलिटिक्स का होता है, कभी कभार वो कंपटीशन आपके कलीग का होता है जो बिल्कुल आप जितना ही कैपेबल है, लेकिन कभी वो आगे निकल जाता है, कभी आप आगे निकल जाते हो. लेकिन कभी कभार ये कंपटीशन किसी के लिए जीवन और मृत्यु के बराबर भी हो जाता है. जैसे एक गरीब घर का बच्चा जो सरकारी नौकरी की तैयारी करता है, एक गरीब घर का बच्चा जो एक एजुकेशन इंस्टीट्यूट को एज अ टिकट और एज अ की देखता है अपने परिवार की गरीबी दूर करने के लिए. एक इंसान जो बहुत ज़्यादा सफलता और संघर्ष से बीत रहा है, उसको एक नौकरी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है अपनी स्थिति सुधारने के लिए. तो उन परिस्थितियों में जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स वो देते हैं, जो इंटरव्यू के लिए वो जाता है, तो ये एक बहुत बड़ा एक समस्या हो जाती है, एक बहुत बड़ी क्रूशियल चीज़ हो जाती है कि उसको सफलता मिले. जब उसको नहीं मिलती है तो उसके लिए एक मृत्यु और जीवन जितना कष्ट उसको होता है, क्योंकि सिचुएशन उसकी उस टाइम बहुत ख़राब होती है. अब जैसे कि आप जानते हैं, IIT, एम्स, CDS, UPSC ऐसे बहुत से एग्ज़ाम हमारे देश में कंडक्ट कराए जाते हैं, जहाँ पे आपको सरकारी नौकरी या एक अच्छे एजुकेशन इंस्टीट्यूट में जाने का मौका मिलता है. बहुत से बच्चे अपने कई कई साल बिताते हैं इन एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन के लिए. लेकिन कभी कभार व्यक्ति पहली बार में सेलेक्ट हो जाता है और कभी कभार वही तीसरे अटैम्प्ट में, दूसरे अटैम्प्ट में सेलेक्ट होता है. UPSC तो एक ऐसा एग्ज़ाम है जहाँ पे लोग सातवें अटैम्प्ट में भी सेलेक्ट हो जाते हैं, 7 साल संघर्ष करने के बाद भी. तो ये एक बड़ा एक इंटरेस्टिंग चीज़ होती है लोगों के लिए कि यार मैं क्लियर कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा, वो तो एक अलग बात है, लेकिन क्या मैं पहली बार में क्लियर कर लूँगा या मुझे बहुत संघर्ष करना पड़ेगा. तो उस सवाल का जो जवाब है और उस बच्चे के लिए जीवन मृत्यु का कष्ट है, उसको हल्का करने के लिए टेक्निक बहुत काम आएगी. तो देखिए, ये टेक्निक क्या कहती है कि बिफोर मूविंग टू द टेक्निक, देखिए हम जानते हैं देयर आर मल्टीपल वेज इन एस्ट्रोलॉजी टू जज वेदर यू विल विन और नॉट इन द कॉम्पिटिशन और टास्क यू टेक. But there is hardly any way which tell you how long will you have to suffer or face failure before becoming successful. हम सभी जानते हैं एस्ट्रोलॉजी के अंदर बहुत सारे वेरिफिकेशन मेथड्स हैं जिनकी मदद से आप ये बता सकते हैं या ये जान सकते हैं कि मैं सफल बनूंगा या नहीं बनूंगा, किसी चीज़ को, किसी टास्क को कंप्लीट कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा. उनको देखने के लिए हम योग या फिर यूँ कह सकते हैं स्ट्रेंथ या अलग अलग भावों के कॉम्बिनेशंस को यूज़ करके बताते हैं कि भाई कोई सरकारी नौकरी चाहता है तो उसका सूर्य बली होना चाहिए, उसका 10वें घर से सूर्य का कनेक्शन होना चाहिए, 6ठे घर से सूर्य का कनेक्शन होना चाहिए, 6th हाउस शुड बी कनेक्टेड टू सन, 10th हाउस शुड बी कनेक्टेड टू सन, 2nd हाउस शुड बी कनेक्टेड टू लियो और सन, दिस शोज इनकम फ्रॉम द सन और गवर्नमेंट. तो ये चीज़ है एक छोटी सी. अब लेकिन ये तो योग है, ये कैसे पता लगे कि भाई वो बच्चा पहली बार में चला जाएगा या दूसरी बार में चला जाएगा. अब देखिए, योग तो सबकी कुंडली में होता है कि भैया वो बहुत बड़ी इन्वेंशन करेगा, लेकिन उसको बेचारे को इन्वेंशन करने में पहली बार में आइडिया आ जाएगा कि उसको 10 साल लग जाएंगे उस चीज़ को प्राप्त करने में. तो वो चीज़ भी बहुत ज़रूरी होती है बतानी, लेकिन आजकल के ज़माने में वो चीज़ कोई बता ही नहीं पाता या कोई इंटरेस्टेड ही नहीं होता बताने में. तो हम इस वीडियो में इस राज पे से पर्दा उठाएंगे. अब देखिए, आपके सामने जो टेक्निक है वो टेक्निक कहती है कि द स्ट्रेंथ ऑफ 8th लॉर्ड largely tells about the number of trials you have to face before you achieve your goal. ये टेक्निक जो है ये आपको ये कहना चाहती है, या जो ऑब्जर्वेशन जो मैंने आपके लिए निकाली है वो ये कहती है कि 8th लॉर्ड अमूमन ये डिसाइड करता है
कि कोई भी व्यक्ति जीवन में जो भी वो टास्क बनाता है, जिस भी कंपटीशन में वो पार्टिसिपेट करता है, उसको कितना जल्दी या कितना देर में जीत पाएगा। इसके पीछे की रीजनिंग मैं आपको फिर कभी दूंगा या अगली वीडियो में दूंगा। आज आप गेस करें, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपके हिसाब से कारण क्या है कि एट लॉर्ड की जो स्ट्रेंथ है वो डिसाइड करती है भाई कोई इंसान कितने ज़्यादा फेलियर्स के बाद सफलता प्राप्त करेगा या पहले अटेम्प्ट में कर लेगा। तो अब देखते हैं आगे। अब अगली स्लाइड में आप देख पा रहे हैं, जैसा कि मैंने पहले बताया था कि स्ट्रॉन्गर द एट लॉर्ड मोर द डिफिकल्टीज इन कंप्लीटिंग और विनिंग ओवर योर कंपटीशन। जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आपका एट लॉर्ड होगा उतनी ज़्यादा आपको डिफ़िकल्टीज और कंपटीशन का सामना करना पड़ेगा जीतने से पहले, और उतनी ज़्यादा आपको ट्रायल्स लगेंगे। वहीं अगर एट लॉर्ड कमज़ोर है तो आपको बहुत कम टाइम लगेगा, बहुत कम अटैम्प्ट्स लगेंगे, या पहली दूसरी बार में भी ये समझ जाएंगे कि भाई इसके पीछे की चाणक्य नीति क्या है, इस राज को वैसे पर्दा कैसे उठाएं कि सफलता की चाबी किसके पास है, कैसे सफलता की चाबी प्राप्त की जाए। वहीं जिसका एट्थ लॉर्ड स्ट्रांग होगा वो बंदे को या वो इस इंसान को पहली बार में समझ नहीं आएगा कि सफलता के लिए क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए और क्या क्या डिस्ट्रैक्शन को अवॉइड करना चाहिए। ऐसे लोग बहुत हठी भी होते हैं। मैं आपको अगर इसका रियल लाइफ में एक्सप्लेन करने की कोशिश करूं कि एट्थ लॉर्ड स्ट्रांग और वीक होने का आपके स्वभाव पे क्या असर पड़ता है, वो ये होता है कि जिसका एट्थ लॉर्ड वीक होता है एक्चुअली में वो इंसान बहुत इनसिक्योर होता है और उसके सीक्रेट्स भी नहीं होते ज़्यादा। अब जब आपके सीक्रेट्स नहीं हैं, आप इनसिक्योर हैं बहुत ज़्यादा, तो अब आप एक खुले सांड की तरह हैं। अब आपको किसी का डर नहीं है। अब आप वो कहते हैं ना कि अब डर नहीं गुमराही का, हर रास्ता तुझ तक जाता है, कुछ लोग ऐसा शेर कहते हैं। तो भाई अब ऐसे इंसान को जिसको डर नहीं है वो सिर्फ अपने गोल की तरफ देखता है। वो ये सोचता है कि मेरा गोल है, वो ही मेरे लिए हर चीज़ है और मेरे जीवन का हर रास्ता उस गोल तक ही जाता है। उसके पास डिस्ट्रैक्शन नहीं होते ज़्यादा। वहीं अगर हम बात करें एक ऐसे इंसान का जिसका एट्थ लॉर्ड स्ट्रांग है, उसके सीक्रेट्स बहुत होते हैं, उसके हिडन एनिमीज बहुत होते हैं। उसको क्या होता है, ऐसे इंसान को साइकोलॉजिकली बैक ऑफ द माइंड बहुत सारी चीज़ें चलती रहती हैं। वो यूपीएससी की तैयारी तो करने जाएगा लेकिन वहाँ पे किसी पे उसका दिल आ जाएगा तो वहाँ पे उन चीज़ों में वो व्यस्त हो जाएगा बेचारा। उसके दोस्त बन जाएंगे, वो दोस्तों के साथ आवारागर्दी करने लग जाएगा। तो वो चीज़ उसको डिस्ट्रैक्ट करती रहेंगी। वो किसी कंपनी में होगा तो वो ऑफिस पॉलिटिक्स के अंदर गलत लोगों का साथ दे देगा और अंत में खुद ही अपनी कुर्सी से गिर के ज़मीन पे आ जाएगा। तो एट लॉर्ड स्ट्रांग होने का बिहेवियरल जो अफेक्ट होता है वो ये होता है कि आपके बिहेवियर के अंदर एक एडमेंसी आ जाती है। आप एडमेंट हो जाते हैं कि नहीं भाई मैं तो नहीं बदलूंगा। चाहे आपको बनना हो ओलंपिक के लिए पहलवान, लेकिन आप कहोगे नहीं यार मैं तो खाऊंगा चिकन बटर और मैं नहीं खाने वाला एक्सरसाइज करने वाला। तो ऐसे कैसे काम चलेगा साहब, मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी उस चीज़ के लिए। वहीं जिसका एट लॉर्ड कमज़ोर होगा वो इंसान डर जाएगा बहुत जल्दी कि यार अरे ये सफलता अगर मुझे नहीं मिली तो मेरी बेइज्जती हो जाएगी। तो वो इसीलिए बहुत जल्दी अपने आप को बदलना स्टार्ट कर देता है बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट्स टू विन दैट कॉम्पिटिशन। अब देखिए कुछ एग्जांपल्स लेते हैं फटाफट ताकि आपको समझ आए कि कैसे ये टेक्निक काम करती है। पहला चार्ट जो आपके सामने है वो है थॉमस अल्वा एडिसन का। थॉमस अल्वा एडिसन कौन है, जो लोग नहीं जानते हैं, थॉमस अल्वा एडिसन ने बल्ब की इन्वेंशन की थी। ये वही बल्ब है जो बचपन में आप अपने घर में लगाते थे और उसके नीचे बैठ के पढ़ते थे। पढ़ाई तो खैर मजाक है, कुछ ना कुछ खेलते ही होंगे, पढ़ते कौन है खाली टाइम में। तो बल्ब ने बहुत सारी चीज़ों का योगदान दिया जीवन में। बल्ब की वजह से इतने बच्चे पढ़ पाए, शहरीकरण इतना अच्छी तरह हो पाया। तो थॉमस अल्वा एडिसन का सब लोगों के जीवन में बहुत बड़ा एक इफेक्ट है, इसको नकारा नहीं जा सकता। लेकिन उनके इस बल्ब की इन्वेंशन के पीछे भी एक बहुत बड़ी कहानी है कि द इन्वेंटर ऑफ बल्ब विच वॉज थॉमस अल्वा एडिसन फेल्ड 1000 times बिफोर इन्वेंटिंग द एक्चुअल सक्सेसफुल लाइट बल्ब। जो थॉमस अल्वा एडिसन थे, जो उन्होंने बल्ब बना के हमको दिया और जो हम लेके आते हैं दुकान से, उसको उस डिज़ाइन को बनाने तक या उस डिज़ाइन तक पहुंचने के लिए उनको 1000 बार फेल होना पड़ा। आप सोच के बताइए कि कोई ऐसी चीज़ जिसमें आप 1000 बार फेल हो चुके हैं, क्या आप कोशिश करते रहेंगे? आधे लोग तो कोशिश छोड़ के चले जाएंगे। तो हमें ये तो मानना पड़ेगा कि इनकी कोशिश में दम था, लेकिन इनकी कुंडली में कोई ना कोई तो गड़बड़ थी जिसकी वजह से इनको इतना गम था कि भाई मैं सफल ही नहीं हो पा रहा हूँ, बल्ब बनाना चाह रहा हूँ, दुनिया से वाह मिलेगी लेकिन कुछ हो पा नहीं रहा है। तो अब हम इनके बर्थ चार्ट को यदि ध्यान से देखें तो आपको पता चलेगा कि इनका जो एट्थ लॉर्ड है मून से। अब आप बहुत से लोग कहेंगे मून से क्यों देख रहे हो भैया। अब देखिए थॉमस अल्वा एडिसन आज से 200-150 साल पहले पैदा हुए थे।
तो इनका बर्थ टाइम हम कहाँ से लेके आएँ? यही समस्या उस चार्ट के साथ भी है जो 20 साल पहले पैदा हुआ है, क्योंकि देखिए बर्थ टाइम कभी भी आपको एग्जैक्ट नहीं मिल सकता, क्योंकि बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है कि जहाँ पे +30 -30 मिनट्स का गैप है, वहाँ पे तो हम रेक्टिफिकेशन कर सकते हैं। 1-2 घंटे का है, वहाँ तक भी चलता है, लेकिन अब कोई 5-6 घंटे का गैप है तो आप कैसे रेक्टिफाई करेंगे? वही पुराने चार्ट्स के साथ भी समस्या होती है। रेक्टिफिकेशन एग्जैक्ट टाइम का कर पाना बहुत मुश्किल होता है। तो इस समस्या का एक सॉल्यूशन ये होता है कि जो भी आप योग देख रहे हैं या जो भी आप जज कर रहे हैं उसको मून से भी करें, सन से भी करें और आत्मकारक से भी करें। आत्मकारक वाली चीज़ मैं आपको फिर कभी बताऊंगा। आज की इस वीडियो में हम सिर्फ मून और सन का यूज़ करेंगे। तो देखिए, चलो चलते हैं। थॉमस अल्वा एडिसन के चार्ट में यदि आप देखें, मून से 8th जो साइन है, मून सेजिटेरियस में है तो 8th साइन बना कैंसर, यानी कर्क राशि। कर्क का कौन होता है लॉर्ड? वो है मून। अब देखिए, मून बैठा हुआ है मार्स के साथ। मार्स सेजिटेरियस के अंदर बहुत अच्छा परफॉर्म करता है। ये एक सीक्रेट है जो मैं आपको आज बताना चाह रहा हूँ। तो थोड़ी देर के लिए ड्रम रोल करवा दीजिए। अब देखिए, मैं आपको बताता हूँ कि टेक्निक जो है वो ये है कि अगर सन, मार्स, जुपिटर, ये जो 3 फायरी प्लैनेट्स हैं, ये यदि सेजिटेरियस, लियो और एरीज में हैं तो ये एग्जाल्टेशन रिजल्ट्स देते हैं या मूल त्रिकोण साइन रिजल्ट देते हैं। अब आप कहेंगे यार ये कैसी बात है? ये बिल्कुल सच्ची बात है। आप इसको टेस्ट कीजिएगा कि जब भी मार्स, जुपिटर और सन, जो 3 फायरी एलिमेंट प्लैनेट हैं, वो जब भी 3 फायरी राशिज यानी कि लियो, सेजिटेरियस और एरीज में आएंगे तो वो बहुत अच्छा और एग्जाल्टेशन और मूल त्रिकोण साइन जैसा रिजल्ट देंगे। अब थॉमस अल्वा एडिसन के चार्ट में भी वही चीज़ हो रही है। आप देखें कि जो मार्स है वो सेजिटेरियस के अंदर है तो बहुत स्ट्रांग है, यानी 8th लॉर्ड जिस प्लैनेट के साथ कंजंग है, जिस प्लैनेट के साथ साथ बैठा हुआ है, वो बहुत बली है। तो वो भी बली है, क्योंकि भैया अगर आपका दोस्त बहुत बड़ा मंत्री है तो आपको कौन हाथ लगाएगा सर? वैसे ही यहाँ पे हो रहा है, क्योंकि इनके साथ जो ग्रह है वो बहुत बली है, तो अब इनकी शक्ति भी बढ़ गई है। दूसरी चीज़ जो हो रही है वो यहाँ पे 2 बहुत तगड़े परिवर्तन योग हैं। परिवर्तन योग जिन लोगों को नहीं पता है, परिवर्तन योग एक ऐसा योग होता है जब 2 प्लैनेट्स कोई सिग्निफिकेंट राशि जो एक दूसरे से रिलेट करती हैं उसमें बदल जाएं, उसको इंटरचेंज कर लें। जैसे फॉर एग्जांपल, मार्स रूल करता है एरीज और वीनस रूल करता है लिब्रा। तो वीनस बैठ जाए एरीज में और उसी टाइम पे मार्स चला जाए लिब्रा में, तो हम ये कहेंगे मार्स वीनस के अंदर परिवर्तन योग बन गया है, क्योंकि अब उन्होंने अपने मूल त्रिकोण साइन एक्सचेंज कर लिए हैं। वहीं अगर मार्स उसमें बैठ जाए जाके पाइसीज में, वहीं वीनस बैठ जाए कैप्रिकॉन में, तो हम ये कहेंगे अब वीनस और मार्स के बीच में परिवर्तन योग है अब भी, लेकिन अब उन्होंने अपनी एग्जाल्टेशन राशि एक्सचेंज कर ली है। तो परिवर्तन योग का कॉन्सेप्ट ये होता है, और ये एक अपने आप में बहुत बड़ा राजयोग है। ये कुंडली को एक बहुत सुप्रीम स्ट्रेंथ देता है। बस कंडीशन यही है कि वो प्लैनेट जो परिवर्तन योग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो स्ट्रांग हो, डायरेक्शनली स्ट्रांग हो, और उनके अंदर कोई वीकनेस ना हो, इन्फेंट ना हो, छोटी उम्र उनकी ना हो, अच्छी डिग्रीज हों, हैवी डिग्रीज हों, और काफ़ी अच्छा रिजल्ट इसका मिलता है। तो यहाँ पे भी देखिए 2 बहुत तगड़े तगड़े इसी 8th लॉर्ड से एसोसिएटेड परिवर्तन योग चल रहे हैं, जिसकी मदद से 8वां घर का स्वामी इतना शक्तिशाली हो गया है कि एडिसन साहब को 1000 बार फेल करा रहा है। कह रहा है इतना आसानी से सफलता नहीं दूंगा, 1000 बार फेल होना पड़ेगा। तो वो कैसे हो रहा है आप देखें, यदि मार्स बैठा है सेजिटेरियस के अंदर, वहीं केतु बैठा है एरीज के अंदर। केतु का एग्जाल्टेशन जो साइन है वो होता है सेजिटेरियस, वहीं मार्स का मूल त्रिकोण साइन होता है एरीज। तो हम ये कह सकते हैं कि मार्स और केतु के अंदर एक परिवर्तन योग है। दूसरा परिवर्तन योग मून और जुपिटर के बीच में भी बना हुआ है, क्योंकि जुपिटर का मूल त्रिकोण साइन है सेजिटेरियस, वहाँ पे मून बैठ गया है, और मून का एग्जाल्टेशन साइन है जुपिटर, वहाँ पे जुपिटर बैठ गया है, तो मून जुपिटर में भी परिवर्तन है। तो दो दो परिवर्तन योग, एक स्ट्रॉन्ग मार्स के साथ मून बैठा हुआ है, तो 8th लॉर्ड तो भाई बहुत स्ट्रॉन्ग है। अब हमने जैसा पढ़ा था या जाना था कि 8th लॉर्ड जब बहुत स्ट्रांग हो जाता है तो इंसान को बहुत सारे फेलियर्स देखने पड़ते हैं अपनी टास्क को, अपने कंपटीशन को जीतने से पहले। तो वो यहाँ पे हुआ। अब यदि आगे देखें तो अगला चार्ट आपके सामने है, वो है हेनरी फोर्ड का। हेनरी फोर्ड फाउंडर थे फोर्ड मोटर कंपनी के। ये वही मोटर कंपनी है जिसकी इंडेवर आती है,
और बहुत से नेता इसको लेके चलते हैं और हर बच्चा देख के कहता है मेरे पास भी एक दिन एंडेवर होगी। तो ये उसी कंपनी के जन्मदाता हैं। एक फोर्ड मस्टैंग कार भी आती है, बहुत लोग उसको पसंद भी करते हैं, उस पर गाने बहुत बने। तो उस कंपनी के भी निर्माता यही हैं, हेनरी फोर्ड। तो देखिए हेनरी फोर्ड की कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है। ये 2 बार विफल हुए थे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में कदम रखने से पहले। जब उस टाइम पे क्या होता था, देखिए जो गाड़ियाँ होती थी वो बहुत महंगी होती थी, बहुत एक्सपेंसिव होती थी, क्योंकि जो गाड़ी की टेक्नोलॉजी थी वो 1800 के अंदर एक बहुत नई टेक्नोलॉजी थी। हेनरी फोर्ड ने ये कहा कि यदि ये जो एक्सपेंसिव चीज़ है इसको मैं हर इंसान तक पहुंचा दूं, यदि तो ये ज़्यादा सफल होगी। तो इसलिए अफोर्डेबल व्हीकल ये बनाना चाहते थे, जो हिंदुस्तान में मारुति सुजुकी करती है, ये वही करना चाह रहे थे 1800 के अंदर अमेरिकन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के साथ। लेकिन इनको बहुत फेलियर एक्सपीरियंस करने पड़े। 2 बार इन्होंने ब्लूप्रिंट बनाए, मेहनत करी, और वो दोनों बार ये फेल हुए। इससे हम ये कह सकते हैं कि इनका एट्थ लॉर्ड कहीं ना कहीं थोड़ा तो स्ट्रांग है, जो इनको पहली बार में सफलता नहीं मिली अपनी इच्छा को जीतने की। तो यदि आप देखें, एट्थ लॉर्ड जो मून से है वो है सन। सन बैठा हुआ है कैंसर के अंदर। देखिए कैंसर एक वाटरी साइन है, और कोई भी फायरी प्लैनेट जब वाटर साइन में बैठ जाता है तो नेचुरली उसके काफ़ी सारी स्ट्रेंथ चली जाती है। बट इस सन को आस्पेक्ट किया गया है मून से, यानी कि जो राशि लॉर्ड है, जहाँ पे सन बैठा है, सन का डिस्पोजिटर उसको दिख रहा है। तो देखिए ये भी एक नई टेक्निक मैं आपको दे देता हूँ आज की वीडियो में। आप खुश रहिए, मज़े लीजिए ज़िंदगी के, कि जब भी कोई प्लैनेट किसी राशि में बैठा है और उसका डिस्पोजिटर भी उसको देख ले तो वो बहुत स्ट्रांग हो जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको बताऊँ तो मर्क्यूरी जैसे है, मर्क्यूरी जाके बैठ जाए साहब पाइसिस के अंदर, तो मर्क्यूरी डिबिलिटेटेड है। लेकिन उसी टाइम पे यदि जुपिटर उसको देख ले तो वो नीच भंग राजयोग कहते हैं उसको, कि भाई अब नीच नहीं रहा, क्योंकि अब ऐसी सिचुएशन हो गई है कि जैसे आप किसी के घर में पीठ पीछे जाते हैं तो वो कहते हैं चोरी करने आ गया, अगर उसको आप पे विश्वास नहीं है तो। लेकिन अगर आप उसके सामने उसके घर में जाते हैं तो वो कहता है आइए पधारिए मेरे घर में, आइए मैं आपको सारी चीज़ें सुख सुविधाएं दूंगा। वैसा ही इस सिचुएशन में होता है। यदि उस राशि का लॉर्ड उसको देख रहा हो, उस राशि को, तो अब वो स्वागत करता है उस ग्रह का और उसको मदद करता है, प्रमोट करता है उसके कारकत्व को बढ़ाने में। वहीं अगर वो उसका नेचुरल एनिमी है और वो उसको आस्पेक्ट नहीं कर रहा है राशि को, तो अब उसको लगेगा कि अरे मेरा दुश्मन है, मेरे घर में तोड़ फोड़ करने आया होगा, तो वो कहता है इसको सारे इफेक्ट इसके छीन लेता हूँ, घर के अंदर से पानी बिजली काट देता हूँ। वो प्लैनेट फिर वीक हो जाता है वहाँ पे। तो ये कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी लगा। सन को जो ओरिजिनली वीक हम मान रहे थे उसको कुछ स्ट्रेंथ मिली क्योंकि मून देख रहा था। इसके साथ साथ यदि आप देखें, राहु का 9th एस्पेक्ट है सन के ऊपर। राहु जो है वो एक ऐसा प्लैनेट है, यदि वो किसी चीज़ को देख ले तो वो उसको एक्सपेंड कर देता है। मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था कि राहु एक्ट एज अ स्टीरॉयड और अ कैटलिस्ट। तो यहाँ पे भी राहु ने वही काम किया। राहु ने जो बेचारा ठीक ठाक ढीला ढाला सा सूर्य था उसकी शक्ति बढ़ा दी। अब हम ये कह सकते हैं कि सूर्य जनरली तो वीक है लेकिन थोड़ा बहुत शक्तिशाली है, तो भाई आपको पहली बार में सफलता नहीं मिलेगी हेनरी फोर्ड जी, आपको 2-3 बार फेल होना पड़ेगा। तो ज़्यादा टेंशन मत लीजिएगा, सफलता आपको मिल जाएगी। और वही चीज़ यहाँ पे हुई, 2 बार ये फेल हुए और उसके बाद इनको सफलता मिल गई। अब अगला चार्ट यदि आप देखें तो साहब इनके बारे में तो क्या ही मैं बताऊँ। ये तो पूरे भारत के हर इंसान के दिलो जान पे बसे हुए हैं। पिछले 50 साल से इन्होंने हिंदुस्तानी फिल्म इंडस्ट्री को, हिंदुस्तानियों के दिलों को इस तरह से जीत रखा है और उस पर राज करते हैं जिसकी कोई बराबरी हो ही नहीं सकती। ये इंसान हैं, ये शख्सियत हैं श्री अमिताभ बच्चन जी, भारत भूषण, पद्मश्री और पद्म विभूषण भी हैं ये। इनके नाम उतने अवार्ड हैं जितने शायद अवार्ड बनाने वाले को नहीं पता हूँ कितने अवार्ड होते हैं। तो अब देखिए ये हमारे मिलेनियम स्टार ऑफ द मिलेनियम है, लेजेंडरी अमिताभ बच्चन। लेकिन इनके ज़िंदगी के बारे में एक बड़ी ख़ास और एक बड़ी बात है जो आपको शायद नहीं पता होगी, कि ये जो इतना बड़ा मेगा स्टार है, लेजेंडरी स्टार है, अपनी पहली सफल फिल्म देने से पहले ये 6 लगातार फ्लॉप फिल्म दी थी इन्होंने। अब लोग कहेंगे यार ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसा हुआ था साहब। जब इनके स्टार्टिंग फेज था करियर का तो इन्होंने बहुत सारी फिल्मों में काम किया और वो सभी की सभी फिल्में फ्लॉप रही। उस समय एक ऐसा दौर भी था जब ये सोचते थे कि मैं अपने बस्ता बांधूं और अपनी टिकट लेके दिल्ली वापस आ जाऊं और दिल्ली में या कलकत्ता जाके कुछ काम कर लूं। लेकिन
देखिए किस्मत का फेर, इनको जब 7वीं फिल्म मिली जो कि जंजीर थी, उसके बाद ये इतने बड़े स्टार हुए कभी मुड़ के देखना ही नहीं पड़ा। तो चलिए इनके चार्ट को एक बार जज करते हैं और ये पता लगाते हैं कि क्या इनका एट लॉर्ड स्ट्रांग है इतना कि जो इनको बना दिया 6 बार फ्लॉप फिल्म का एक्टर। तो देखिए यदि मून से आप एट्थ देखें तो मून से एट्थ में बैठा हुआ है सर सैटर्न। और सैटर्न जिस राशि में बैठा है वो है वीनस की। तो जो कि सैटर्न वीनस नेचुरली फ्रेंड्स हैं। और सैटर्न एक अर्थ साइन में बैठा हुआ है जो कि टॉरस है। तो भाई एट्थ लॉर्ड, एट्थ हाउस के अंदर जो प्लैनेट बैठा है वो तो स्ट्रांग है। तो एक हमको ग्लिम्स मिल गया कि कुछ तो शक्ति है भैया यहाँ पे। अब थोड़ा तुम बच के रहो बच्चन साहब, तुम्हें सफलता जल्दी से नहीं मिलेगी किसी भी नई चीज़ में। तुम बच के रहना, काफ़ी फेलियर होगा, इसलिए रिस्क कम लेना। अब वहीं आप वीनस देखें, मून से एट्थ जो लॉर्ड है वो है वीनस। तो वीनस डिबिलिटेटेड हो गया है। अब कोई इंसान नया बेचारा एस्ट्रोलॉजी में आया हुआ वो ढोल पीटेगा, अरे वीनस डिबिलिटेटेड है, अब तो इन इंसान को कुछ भी नहीं वो मिलेगा, 2 मिनट में सफलता मिल जाएगी, वो रूल कहता है। लेकिन सर आप ये बात भी देखें कि जो डिबिलिटेटेड वीनस है उसके साथ मर्क्यूरी बैठा है और वो मर्क्यूरी एग्जाल्टेड है। और जो हमने आपको थोड़ी देर पहले रूल बताया था कि यदि किसी राशि में कोई ग्रह है और उसका राशि लॉर्ड उसको देख ले तो व्यक्ति को इतनी उस प्लैनेट को इतनी ज़्यादा शक्ति मिल जाती है कि अब उसको जो कल लठ मार के भगा रहा था अपने घर से, वो कहता है कि आजा भाई बैठ जा, खा ले, दोस्ती कर ले, दुश्मनी बहुत हो गई। तो वही चीज़ यहाँ पे हुई है। ये भी जो एट्थ लॉर्ड है उसको एक तरीके से आप ये कहें कि उसके डिबिलिटेशन के इफ़ेक्ट बहुत कम हो गए हैं, वो नीच भंग राजयोग के रूप में एक्सप्रेस हो रहा है। इसलिए अब वीनस बहुत स्ट्रांग है और एट्थ हाउस में जो प्लैनेट है वो भी बहुत फ्रेंडली और स्ट्रांग है। तो एट्थ हाउस और एट्थ लॉर्ड दोनों स्ट्रांग हो गए हैं। दूसरी चीज़ यदि आप देखें, सन से यदि आप कंफर्म करें तो सन से एट्थ साइन है एरीज का। मार्स भी उसी नीच भंग राजयोग में पार्टिसिपेट कर रहा है। जो सन से एट्थ लॉर्ड है वो भी उस नीच भंग राजयोग में पार्टिसिपेट कर रहा है। तो हम ये क्लियरली देख सकते हैं कि भाई एट्थ लॉर्ड फ्रॉम सन और एट्थ लॉर्ड फ्रॉम मून बोथ ही बहुत स्ट्रांग है। तो अब अमित जी ज़िंदगी में जो भी आप कोई चीज़ नहीं करेंगे तो आपको बहुत कंपटीशन झेलना पड़ेगा। इसलिए कोई भी नई चीज़ करने से पहले 100 बार सोचिएगा। अमित जी ने एक बार ज़िंदगी में गलती करी, उन्होंने सोचा नहीं और एक बहुत बड़े कॉरपोरेशन खोली थी ABC कॉर्प, और वो फ्लॉप हो गई। क्योंकि अमित जी इज़ डेस्टिन्ड टू फेल मल्टीपल टाइम्स। तो इनको स्टार्टिंग में बड़ा रिस्क नहीं लेना चाहिए था। छोटा छोटा रिस्क लेते तो हर फेलियर से कुछ सीखते और छठी बार में शायद इतनी बड़ी कंपनी खोल पाते कि आज ये बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट भी बन जाते। लेकिन क्या करें, शायद कोई गाइड करने वाला इनको था ही नहीं, क्योंकि टेक्निक तो हमने अभी निकाली है भैया ये वाली, तब कैसे मिल जाती। अब देखिए अगले चार्ट पे चलते हैं। अगला चार्ट है आमिर खान का। अब देखिए आमिर खान के बारे में क्या कहें साहब। आमिर खान आज उस त्रिमूर्ति का हिस्सा हैं जिस त्रिमूर्ति में कभी राज कपूर, देवानंद और दिलीप कुमार का नाम लिया जाता था। आज की त्रिमूर्ति में एक ये भी है। आज की त्रिमूर्ति बहुत से लोग कहेंगे कौन है, बधाई हो साहब, आपको नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। सलमान खान, शाहरुख खान और आमिर खान इस समय और काफ़ी लंबे समय से हमारे बॉलीवुड के वो 3 त्रिमूर्ति रहे हैं जिन्होंने इस इंडस्ट्री को बहुत ज़्यादा मदद करी है फलने फूलने में और प्रमोट करने में और फेम तक ले जाने में जहाँ पे आज है। जो किसी दौर में देवानंद, दिलीप कुमार और राज कपूर साहब ने किया था इस इंडस्ट्री के लिए। तो देखिए आमिर खान इज़ करंटली द बिगेस्ट स्टार इन बॉलीवुड। ही डिड 2 डॉक्यूमेंट्रीज बिफोर स्टारिंग इन हिज फर्स्ट फिल्म नेम्ड एज कयामत से कयामत तक। तो देखिए आमिर खान साहब ने जो पहली फिल्म करी वो कयामत से कयामत तक थी, लेकिन उससे पहले वो तो छोटे छोटे रोल कर चुके थे डॉक्यूमेंट्रीज़ में, पीछे जो डांसर होते हैं या छोटा मोटा जो रोल करने आते हैं लोग वैसे। तो इसका मतलब ये है कि भाई इनको तो पहली बार में सफलता बहुत बड़ी मिल गई, क्योंकि कयामत से कयामत फिल्म आने के बाद साहब इनका फेम उतना ही बढ़ा था जितना बाहुबली के बाद प्रभास का हो गया था, क्योंकि हाउस होल्ड नेम बन गए थे ये। तो अब अगर आप इनके चार्ट को देखें ध्यान से तो एट्थ लॉर्ड फ्रॉम मून है सैटर्न, एक वेरियस साइन है वहाँ पे, और वहाँ पे कंजंक्शन हो रखी है साहब सैटर्न सन की। अब एस्ट्रोलॉजी का एक और नया रूल मैं आपको बताता हूँ इस चार्ट को एनालाइज करने में, जो हमें मदद करेगा कि यदि 2 नेचुरल एनिमीज जैसे कि मर्क्यूरी मून, मार्स मर्क्यूरी और सैटर्न सन ये साथ आ जाए और एक कोई एनिमी है उसको हराने के लिए, उसको परेशान करने के लिए बहुत सारे दूसरे ग्रह आ जाएं, तो जो उसके फ्रेंड्स हैं और दूसरे के दुश्मन हैं, तो भाई एक प्लैनेट अपने सारे सिग्निफिकेशंस खो देता है रिस्पेक्टिव टू दैट हाउस।
अब देखिए ध्यान से, मून से एट्थ लॉर्ड है सैटर्न और वो सन के साथ कंजंक्ट है। अब यहाँ पे सैटर्न सन कॉम्बिनेशन हो गया तो वैसे ही हम कह सकते हैं एट्थ हाउस तो ख़राब हो गया, इसमें अब शक्ति बची नहीं है ज़्यादा कुछ करने की। लेकिन अब मार्स ने जब इस कॉम्बिनेशन को एस्पेक्ट किया तो हमको एक कंफर्मेशन मिल गया कि भाई मार्स तो सैटर्न का दुश्मन है और सन का फ्रेंड है। अब लोग कहेंगे मार्स सन का फ्रेंड कैसे है? सन का एग्जाल्टेशन जो साइन है साहब वो है एरीज, और एरीज को रूल करता है मार्स। तो सन का एग्जाल्टेशन साइन लॉर्ड बन गया है मार्स, तो इसलिए मार्स क्या है? फ्रेंड है सन का। इसीलिए मार्स सन को फेवर करेगा और सैटर्न को दबाएगा। और यदि आप ध्यान से देखें तो इस मार्स के ऊपर जुपिटर का भी एस्पेक्ट है थर्ड हाउस से, और जुपिटर एरीज में बैठा हुआ है। मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था यदि मार्स, जुपिटर और सन फायरी साइंस में बैठ जाएं तो वो एग्जाल्टेशन या मूल त्रिकोण रिजल्ट देते हैं। जुपिटर जो ऑलरेडी स्ट्रांग है वो इस मार्स को और शक्ति दे रहा है, और जुपिटर की शनि से जो दुश्मनी है साहब वो बहुत पुरानी है। लोग कहेंगे कैसे? क्योंकि सब जुपिटर जो है वो डिबिलिटेट होता है कैप्रिकॉन के अंदर, और कैप्रिकॉन का लॉर्ड है सैटर्न। यानी जो दुश्मन है जुपिटर का वो भी सैटर्न है। तो अब जुपिटर कहेगा कि चल भाई मार्स बचा, सूर्य को बचा। तो अब सूर्य को बचाने वाले तीन लोग, शनि बेचारा अकेला शुक्र के साथ है, एक ही ग्रह उसका दोस्त, तो अब शनि तो वैसे ही चला गया। तो हम ये कह सकते हैं कि भाई एट्थ लॉर्ड और एट्थ हाउस इज ज़ीरो पावर्ड, और यही तो हमें चाहिए था साहब जल्दी सफलता के लिए। यदि किसी भी इंसान का, मैंने आपको रूल बताया था, एट्थ लॉर्ड वीक हो जाए तो सफलता जल्दी मिलती है। वो ही इनके केस में हुआ। शनि जो एट्थ लॉर्ड है, सैटर्न जो एट्थ लॉर्ड है, उसके कमज़ोर होने की वजह से इनको अब सफलताएं बहुत जल्दी जल्दी मिलेंगी, और एक दो अटैम्प्ट्स में ये बहुत सक्सेसफुल हो जाएंगे। और यदि आप याद करें तो क़यामत से क़यामत तक एक ऐसी फिल्म थी जो एक अपने ज़माने में ट्रेंड चेंज करने वाली फिल्म थी। उसके बाद इन्होंने जब अपनी करियर की सेकंड इनिंग खेली, तारे ज़मीन, थ्री इडियट्स, उसके बाद जो इंटेलेक्चुअल सिनेमा को इन्होंने जन्म दिया, वो भी एक बहुत बड़ा चेंज था। और कोई भी ये कह नहीं सकता कि भाई मैं ट्रेंड से हट के एक चीज़ करूँगा और वो सफल हो जाएगी, लेकिन इन्होंने करके दिखाया, क्योंकि इनके बर्थ चार्ट में वो योग है कि ये किसी भी नई चीज़ को छेड़ेंगे तो बहुत सफल हो जाएंगे। और इन्होंने सत्यमेव जयते जैसा एक टीवी शो भी किया था। किसी भी बड़े स्टार का एक टीवी शो करना, वो भी एक ऐसा जो इन्फॉर्मेटिव हो, उसमें एंटरटेनमेंट ना हो, उसका सफल होना ज़ीरो चांसेस हैं। लेकिन इन्होंने सत्यमेव जयते को इतना सफल बनाया, इतना सफल बनाया कि एक टाइम पे सभी लोग देखते थे हर संडे को कि सत्यमेव जयते में आज नई क्या स्टोरी होगी। तो हमने कई चीज़ों से ये कंफर्म किया कि कैसे जो आमिर खान का योग है इनको मदद करता है जो भी नई चीज़ छेड़ते हैं या कोई भी टास्क छेड़ते हैं उसमें जीतने में। अगला चार्ट, अब देखिए अगला चार्ट जो है साहब जिनका है, ये हमारे देश के इकलौते रॉक स्टार हैं हमारे देश में। अगर इतिहास में कोई रॉक स्टार का नाम होगा तो सलमान खान का होगा। अब देखिए सलमान खान एक्टर नहीं है, बहुत से लोग कहते हैं एक्टर है, देखिए एक्टिंग एक अलग चीज़ है, इनकी पर्सनैलिटी चलती है। अब इनका जो स्टारडम है, इनका जो फ़ैन फॉलोइंग है, उसके बारे में एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं है साहब। वो इतना बड़ा है कि अगर ये एक नॉर्मल सी फिल्म भी बनाते हैं तो वो 300 करोड़ पार चली जाती है। अब देखिए सलमान खान जो है, इनकी जो सफलता मिली इनको भी अपनी सेकंड फिल्म में मिल गई। पहली फिल्म इनकी जो थी वो एक इन्होंने साइड रोल निभाया था, और सेकंड फिल्म जब इन्होंने एज अ लीड करी वो इतनी बड़ी हिट हुई, इतनी बड़ी हिट हुई कि आमिर खान और सलमान खान को अमिताभ बच्चन को रिप्लेस करने वाले स्टार्स के रूप में देखा जाने लगा। और सलमान खान वॉज बिगर ऑन द लिस्ट देन आमिर खान टू रिप्लेस द एज द न्यू बिग स्टार ऑफ द बॉलीवुड। अब आप इनके चार्ट को ध्यान से देखें तो एट्थ लॉर्ड फ्रॉम द मून इज मर्क्यूरी, और मर्क्यूरी बैठा है साहब स्कॉर्पियो के अंदर केतु के साथ। मर्क्यूरी की दुश्मनी है केतु से और मार्स से। और यदि आप ध्यान से देखें केतु एग्जाल्टेड है, तो ये तो वही सिचुएशन होगी कि साहब गब्बर के उसमें जाके, जहाँ पे गब्बर अपने पूरे डकैतों के साथ बैठता है, आप कह रहे हो कि चल आज़ाद दुश्मनी निभाते हैं, तो अब तो भैया आप मरोगे। तो वही मर्क्यूरी के साथ हुआ। मर्क्यूरी कंजंक्ट है केतु के साथ, और केतु के घर में एग्जाल्टेशन पॉइंट में, तो मर्क्यूरी की स्ट्रेंथ तो गई। तो एट्थ लॉर्ड फ्रॉम मून इज़ वेरी वीक। अब आप सन को देखें, सन से एट्थ लॉर्ड जो है वो है कैंसर साइन यानी कि मून। मून है साहब सैटर्न के साथ कंजंक्ट। अब मून और सैटर्न की ना तो ऐसी कोई खास दोस्ती है, ना तो ऐसी कोई खास दुश्मनी है, पर ये जो प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है साहब, वो प्रॉब्लम हो रही है ड्यू टू द राशि इन विच दिस कंजंक्शन इज हैपनिंग। एक्वेरियस जो साइन है साहब वो मून के लिए बहुत अनस्टेबल साइन है।
जिसका भी मून एक्वेरियस में होता है साहब, उसको बहुत माइंड रिलेटेड या उस हाउस रिलेटेड प्रॉब्लम होती हैं, जहाँ पे जिस हाउस को मून रूल करता है, अगर उसका मून एक्वेरियस में है तो, क्योंकि ये नेचुरली राहु मून कंजंक्शन हो गया है और राहु मून को जीने नहीं देता साहब। वहीं सैटर्न भी आ गया है, तो मून पे अब दो दुश्मन आ गए हैं। पहले तो वो एक ऐसे एक्सट्रीमिस्ट राहु को झेल रहा है जो उसको बार बार कहता है बदल 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 बदल। वहीं पे एक उसको सैटर्न आ गया है जो दबदबा कर रहा है उसके ऊपर कि नहीं, अब तू ये करेगा, अब तू वो करेगा, अब तू मेरे हिसाब से चलेगा। तो अब जो एट्थ लॉर्ड फ्रॉम सन है उसको भी शक्ति नहीं मिल पा रही है, और जो मून से भी एट्थ लॉर्ड है उसको भी शक्ति नहीं मिल पा रही है। तो दोनों बेचारे बीमार हो चुके हैं, और हम यही चाहते थे कि एट्थ लॉर्ड कमज़ोर हो जाए, क्योंकि यही आपके जो क्लाइंट हैं, आपके नेटिव हैं, जिन जो आपको चार्ट दिखा रहे हैं, वो जल्दी सफलता देंगे। और यही हुआ। बिकॉज ऑफ द वीकनेस ऑफ द एट्थ लॉर्ड फ्रॉम सन एंड मून, सलमान खान बिकेम द बिगेस्ट स्टार ऑफ दैट टाइम एज द डेब्यू एक्टर इन हिज फर्स्ट और सेकेंड फिल्म, विच इज़ क्वाइट इम्पॉसिबल। नाउ अब देखिए अगला चार्ट और लास्ट चार्ट जो हम आज की वीडियो का डिस्कस करने जा रहे हैं, वो एक ऐसे इंसान का हिसाब, अगर मैं आपको उनका एनालिसिस दिखाऊंगा तो आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। और अब हम मूव करते हैं उस चार्ट की तरफ, वो है अरविंद केजरीवाल जी का। अरविंद केजरीवाल जी को हम सभी जानते हैं। अरविंद केजरीवाल जी ने जो जन आंदोलन किया, वो हमारे मॉडर्न टाइम्स का, या हम कहें 21वीं सदी का पहला बड़ा आंदोलन था जो इंडिया ने एक्सपीरियंस किया। इस आंदोलन के अंदर से स्टार के रूप में निकल के आए, और एज एन आईआरएस ऑफिसर जब इन्होंने रेजिग्नेशन दिया तो सब लोग इनके बहुत फेवर में आ गए थे, और सबको ये लगा कि अब इस आंदोलन के अंदर एक जिम्मेदार इंसान भी जुड़ रहा है। पहले सभी लोग सोच रहे थे कि एक राजनीतिक आंदोलन है, पर जब उन्होंने देखा कि एक आईआरएस ऑफिसर जिसके पास इतनी अपॉर्चुनिटीज़ हैं पैसा कमाने की सही और गलत तरीके से, वो इस आंदोलन के साथ जुड़ रहा है, तो लोग भी जुड़ने स्टार्ट हुए, और फिर वो आंदोलन इतना बड़ा हुआ कि आज वो हिस्ट्री के अंदर इमोर्टलाइज हो गया है, उसको मिटाया नहीं जा सकता। अब यदि आप अरविंद केजरीवाल जी को देखने जानने की कोशिश करें, उनका रिज्यूमे जानने की कोशिश करें, तो ही गॉट सिलेक्टेड इनटू आईआईटी इन हिज फर्स्ट अटेम्प्ट, cracked UPSC in his first attempt, become MLA in first attempt, and the most shocking part, and which is quite impossible, became chief minister in his first attempt. आप खुद सोचिए कि ये कितनी बड़ी बड़ी अचीवमेंट्स हैं जो एक ही इंसान लिए बैठा हुआ है। आईआईटी में जाना अपने आप में हमारे दौर के अंदर एक भीड़ जो है भागती है कि आईआईटी में एडमिशन मिल जाए, जीवन बदल जाएगा आईआईटी में जाने से, मिडिल क्लास फैमिली का सपना है, लोग कितने पूजाएं करते हैं आईआईटी में हो जाए। इन्होंने वो भी अचीव किया बहुत आसानी से फर्स्ट अटैम्प्ट में। अगेन देन यूपीएससी, 90% ऑफ द मिडिल क्लास चाहता है कि मेरा बच्चा यूपीएससी क्लियर करे। 90% ऑफ द जो लोग मिडिल क्लास के हैं वो चाहते हैं कि यूपीएससी उनके हाथ में आ जाए। वो भी इन्होंने फर्स्ट अटैम्प्ट में क्लियर कर लिया। देन बिकमिंग एमएलए इज़ अ वेरी बिग थिंग, वो भी इन्होंने किया। और हमको ये बात पता है कि जितने भी ब्यूरोक्रेट्स जो हैं वो पॉलिटिक्स में आते हैं वो फेल हो जाते हैं। एवरी ग्रेट ब्यूरोक्रेट इज़ अ बैड पॉलिटिशियन, ये बहुत कॉमन एक टर्म होती थी पहले के ज़माने में, लेकिन जब ये आए और इन्होंने जिस तरीके से पॉलिटिक्स को अडॉप्ट किया और जिस तरीके से सीखा पॉलिटिक्स को, और लेटर ऑन चीफ मिनिस्टर बने दिल्ली के, वो एक अपने आप में बहुत बड़ी अचीवमेंट है। अब यदि हम जज करने की कोशिश करें, जो हमने टेक्निक निकाली थी कि कैसे हर चीज़ में फर्स्ट अटेम्प्ट को क्लियर कर रहे हैं, इसका मतलब इनका एट्थ लॉर्ड डेफिनेटली बहुत वीक है। तो यदि आप इनका चार्ट देखें, मून से जो एट्थ लॉर्ड है वो है मार्स। क्यों? क्योंकि जो साइन है मून से एट्थ के अंदर वो है स्कॉर्पियो। अब देखिए मार्स डिबिलिटेटेड है इन द साइन ऑफ कैंसर इन थर्ड हाउस, यानी कि जो एट्थ लॉर्ड है मून से वो डिबिलिटेट हो चुका है, बहुत वीक हो चुका है। और अगर आप मून को देखें तो मून जो है जो डिस्पोजिटर है डिबिलिटेटेड मार्स का, वो भी डिबिलिटेटेड सैटर्न के साथ कंजंक्ट है, तो मून भी कुछ खास स्ट्रॉन्ग है नहीं। अच्छा, आप दूसरी चीज़ देखें, सन से जो एट्थ लॉर्ड है हम उसको भी जज करने की कोशिश करते हैं जैसे हमने पिछले चार्ट में किया। सन से जो एट्थ लॉर्ड है वो है सैटर्न, और सैटर्न भी डिबिलिटेटेड है इन द 12th हाउस। अब आप खुद सोचिए ये कितना बड़ा राजयोग है अपने आप में, कि जो
एक हाउस लॉर्ड आपके लिए हर्डल बनता है, जो आपके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है कंपटीशन को जीतने में, वो ही आपके चार्ट में डिबिलिटेट हो चुका है। और न केवल मून से बल्कि सन से भी वो डिबिलिटेटेड है। और ये बहुत रेयर एक कॉम्बिनेशन है किसी इंसान को ही मिलना कि उसके लाइफ के हर्डल्स इतने ज़ीरो हो चुके हैं कि अब वो जो भी टास्क लेगा, उसकी प्लानिंग, उसकी विल पावर उसको वहाँ पे जीतने में बहुत मदद करेगी। और वो ही हुआ। आप देख पा रहे हैं कि इन्होंने कितने इम्पॉसिबल टास्क को इतना आसानी से फर्स्ट अटेम्प्ट में किया, बहुत जल्दी कर लिया। और यही चीज़ इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को बताना चाह रहा था कि कैसे आप ये पता लगा पाएँ कि और इस नॉलेज से आप न केवल खुद को पर हर उस इंसान की मदद कर पाएँ जो आपसे कभी मदद एक्सपेक्ट करता है, या स्वयं भी आप कभी डिप्रेस्ड हैं, दुखी हैं, आप किसी चीज़ के पीछे ट्रायल करते जा रहे हैं लेकिन कॉन्टिन्यूस फेलियर है। तो आप हार न माने। अगर आपके बर्थ चार्ट में योग है और फिर भी आप सफल नहीं हो रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि आपका 8th लॉर्ड आपसे और अटेम्प्ट्स दिलवाना चाहता है। वो भी आपके अंदर और बदलाव लाना चाहता है, अभी आपको और तैयार करना चाहता है। तो आप आज की वीडियो से मैं समझता हूँ इस टेक्निक को समझ गए होंगे, आपने सीख लिया होगा कि किस तरीके से आप ये जज कर सकते हैं अब कि कितने ज़्यादा अटेम्प्ट्स आपको लगेंगे अपने गोल को अचीव करने में, तो डीमोटिवेट ना हो। और जो वो फेज़ आपकी लाइफ के अंदर आता है जब आप हार जाते हैं, सोचते हैं और कितने मुझे संघर्ष करना पड़ेगा, तो अब आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप अपना चार्ट देख लीजिए, अगर आपका 8 लॉट थोड़ा ज़्यादा स्ट्रांग है तो आप अपने आप को संतुष्टि दे सकते हैं कि अभी मुझे और सीखना है। सफलता तो मेरे हाथ में आएगी ही आएगी, लेकिन शायद भगवान मुझसे थोड़ी मेहनत और करवाना चाहते हैं। अब देखिए, ये थी आज की वीडियो। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो और आज का एक क्रिस्पी टेक्निक और कंटेंट अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ऐसी ही अच्छी अच्छी नई नई टेक्निक्स मैं लाता रहूँगा आपके लिए। जितना ज़्यादा आप हमारे चैनल को सपोर्ट करेंगे, उतना ज़्यादा हम क्रिएटिवली और नया कंटेंट आपके लिए ला पाएंगे, पोल्स कंडक्ट करा पाएंगे, लाइव सेशंस रख पाएंगे, जिसमें हम बहुत सारे अच्छे अच्छे एस्ट्रोलॉजर्स जिनको हम जानते हैं आपके लिए ला पाएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारी कम्युनिटी को ग्रो करने में मदद करें। और लिंक्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जो मैंने आपको आंसर बताया था। और यदि आपको कंसल्टेशंस चाहिए, किसी भी तरीके की कोई गाइडेंस चाहिए, कोई क्वेरी है, तो जो मैंने ईमेल एड्रेस में डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप उसमें बेझिझक मेल करें। आपको जल्दी से जल्दी रिप्लाई मैं करने की कोशिश करूँगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। शुक्रिया, बाय बाय।